So guys, I'm ready for the trip, about to leave, and so excited for my trip, which I'm going for after 2 years. And this is my solo trip after 6 years. My last trip was in Belgium. This one is going to be an awesome place. So looking forward to it. So finally guys, I've removed my mask. So where am I traveling? I know a lot of people travel for different reasons. People travel for work, people travel for holidays. So why am I traveling? So this trip of mine is something unique. It's not a typical holiday. Something very different from what you would normally do. And I think it was high time I had to do this. It was on my bucket list. So yeah, I'm really excited. Let's see what happens and I'll keep you posted. और इसको बोलते हैं बैड लक. I just finished my coffee and I found Starbucks just next to my gate. I cannot get worse than this. But no problem. I'm a coffee lover. I can have 2 coffees in the span of half an hour. So there it is. So guys, just finished my immigration. Pretty straightforward. They just asked me for my COVID test. I'm already double jabbed in the UK, and also I've done my antigen test within 48 hours. So pretty straightforward. मैं अपने पास हैंड बैगेज लेके जा रहा हूँ, तो मुझे कोई बैग्स के लिए भी वेट करने की जरूरत नहीं है. Just quickly out. So not even 10 minutes since my flight landed and I'm off. आगे देखते हैं मुझे टैक्सी कैसे मिलती है. Probably I'll do an Uber and I'll keep you posted how to reach the place that I'm going, which is called Rezange, which is about 30 kilometers from here. So update करता हूँ फिर. Good weather here, I believe. Yeah, was a couple of days through the night was raining, through the days sunny. Okay, now at night is going a little down temperature, but through the day was 27, 28. Wow, that's good. 27, 28. Yeah, will be, but that was because it's coming northbound, but it's cleaned. Now will be without rain. Good. Is it the tourist season now this year? Yeah, this is a long season because it start a little later. Little later, but right? It's good weather and you got tourists here. So finally I've checked into this apartment, guys. This is my room here, and completely to myself. So I love it, and very nicely maintained flat. But the most important thing is, or the best thing would you would say, is this part, which is a small terrace here, which overlooks the sea. Yes, it's a sea here. और आप देख सकते हो यहाँ पे like completely see through water है. अभी तो रात को दिख रहा नहीं होगा. तो ये रास्ता है, कहीं गिर नहीं जाओ. बट मज़ेदार एकदम एडवेंचर हो गया है. जैसे ये आपको अगेन फिर से कोई सिटी सेंटर में रहो, कोई होटल में, तो मज़ा नहीं आएगा. तो ये इसका पाथवे है. पानी तो देखो यार, क्या बात है. गजब, एकदम गजब. तो चलते हैं आगे रेस्टोरेंट की तरफ. देयर इज अ स्मॉल सुपरमार्केट एज वेल. देखते कितना दूर है. आई थिंक उसने कहा कि यहाँ से 5 मिनट वॉक पे ही है. Good morning
morning everyone. So it's day 2, morning time, about close to 7:30 a.m. local time. So देखते हैं व्यू कैसा है, जो सबसे जो कल रात को दिखा नहीं दिया प्रॉपर्ली. Okay. Wow, this feels amazing. Oh my goodness. Look at the water. यार ऐसा होना चाहिए किसी का टेरेस. सो गाइस, मैं हूँ अपने अपार्टमेंट में. दिस इज़ डे 2. मैं एक्चुअली एक दिन पहले ही आ गया था. मेरा कोर्स जो है, जो स्पिरिचुअल और मेडिटेशन और बेसिकली जो कोर्स 5 डे का जो मेरा कोर्स है, स्टार्ट फ्रॉम टुडे डे 2 विच इज़ वेडनेसडे. इट गोज ऑन टिल संडे 22nd to 26th. बट आई वॉज ऑफर्ड टू कम 1 day in advance. तो मैं एक दिन पहले ही आ गया. मैंने बोला कि जगह देख लूँगा, और वैसे भी काफ़ी लेट था, तो कल रात अंधेरा हो चुका था, तो कुछ देख नहीं पाया. बट आज बहुत ही अच्छी धूप है, और लोकेशन तो आप देख सकते हो. तो आई हैड अ फुल 3 bedroom अपार्टमेंट टू माई सेल्फ. कान कंप्लेन. सुबह उठ के कॉफ़ी बनाया मैंने, और अभी मैं ब्रेकफास्ट या ब्रंच के लिए निकलूँगा. तो मेरा 5 बजे फर्स्ट सेशन है आज का, और आई थिंक करीबन 7 लोग आ जाएंगे इस सेशन पे. एंड देन उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ विल बी प्लान्ड. बट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज़ सो अमेजिंग दैट मुझे पता नहीं पड़ा कि अभी सुबह से अभी ऑलमोस्ट इट्स 11:30 लोकल टाइम. मुझे पता नहीं पड़ा टाइम कहाँ निकल गया. वाईफाई भी फ्री दिया हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी रीज़नेबल है. पूरे जो कॉस्ट है इंक्लूडिंग अकोमोडेशन और जो कोर्स है इज़ अबाउट 432 euros. क्रोएशिया एक्चुअली थोड़ा एक्सपेंसिव है. इट्स क्वाइट सिमिलर टू UK. ट्रैवल काफ़ी एक्सपेंसिव है, और जो लोकल चीज़ें सुपरमार्केट्स में, मैं सुपरमार्केट्स की डिटेल में जाऊंगा नहीं क्या क्या चीज़ें मिलती है और क्या क्या है, बट मोस्टली यू गेट एवरीथिंग और एग्जैक्टली सेम प्राइस ऑफ UK. यहाँ पे कोई बड़ा सुपरमार्केट ये रज़ाइन में तो नहीं है, स्प्लिट में तो शायद होगा फॉर श्योर. बट यहाँ पर एक छोटा सा सुपरमार्केट है जहाँ पर मैं कल गया था. वहाँ पे आपको सब बेसिक चीज़ें मिल जाएगी, राइट फ्रॉम टूथपेस्ट से लेके आपको कुछ खाना वगैरह, और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे है. तो आई थिंक यही है लोकल होने का मज़ा. लोकल घूमो, लोकल खाओ पियो, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट क्रोएशिया अगर आप आ रहे हो तो अपना थोड़ा सा बजट बढ़ा के आना. जो आप सोचोगे उतने चीज़ों का मिलेगा नहीं. सो ये है हमारा छोटा सा टाउन सेंटर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, रोजांज में, जो एक काफ़ी बीच साइड प्लेस है. और यहाँ पे काफ़ी बार्स और रेस्टोरेंट्स है. जैसे ये रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ये शाम को खुलता है. और लोकल लोग घूम रहे हैं यहाँ पे. ज़्यादा लोग नहीं हैं, काफ़ी कम लोग हैं. आई थिंक वीकडेज के लिए शायद काफ़ी कम क्राउड है. और यू कैन रेंट आउट बोट्स का काफ़ी यहाँ पे क्रेज़ है. सो लोग अपनी खुद की बोट्स लेके आते हैं, या तो फिर रेंट पे लेके दे कैन मूव अराउंड. मनी एक्सचेंज ऑफिस है, ट्रैवल्स है, और छोटे मोटे काफ़ी पब्स है. अब मैं जाऊँगा ये पब में, कैफ़े बार मोलो में, फॉर अ कॉफ़ी. और यहाँ पे एक छोटा सा सुपर मार्केट भी है. ज़्यादा कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, बट ठीक है, अगर आपको छोटा मोटा ग्रोसरी लेना है, फ्रूट्स खाना है, या कुछ भी आपको लेने हैं, टूथपेस्ट, ब्रश, तो बेसिकली सारी चीज़ें मिल जाती है. थोड़ी महंगी है, बट क्रोएशिया एक्चुअली है थोड़ा महंगा, तो काफ़ी कॉमन है. रेस्टोरेंट्स काफ़ी सुबह खुलते नहीं हैं. लोग यहाँ पे लंच प्रेफर नहीं करते. लोग नॉर्मली शाम को 5 बजे 6 बजे डिनर खा लेते हैं. तो बस यही है छोटा सा टाउन सेंटर. चलते हैं कॉफ़ी पीने. Hey guys, so this is day 2. The water is looking serene. We just finished our yoga classes, and yoga classes in there is just amazing with some amazing views. So as you can see here, people are actually going into the water now. You can see people sunbathing there, and people also hiring boats on rent. Many people I think are just waiting for the afternoon time.
so that it's a bit hotter. But actually, it's quite hot. It's just windy. Perfect time. But in Croatia, one thing you have to remember: you can't just jump into the water. You need to wear some kind of floats because there are some sea animals which can just sting you. So yeah, you can see a lot of people down there. I'm really looking forward to going into the water, just waiting for the right time and the right company. So guys, मेरे जो ग्रुप मेट्स है, जो ग्रुप वाले हैं, सारे के सारे पानी में घुस चुके हैं. खाली बचा मैं हूँ. आई थिंक अभी टाइम आ चुका है. थोड़ी तो इज्जत रखनी पड़ेगी इंडिया की. तो जा रहा हूँ मैं कूदने पानी में. आपको अपडेट देता हूँ. तो भाई यहाँ पे जो स्विमिंग करना पानी में थोड़ा सा अलग ही किस्सा है. जिसको स्विमिंग आती है वो तो आराम से कूद सकता है. बट यहाँ पर आपको अगर कुछ दिख रहा है, ब्लैक वाले जो चीज़ें दिख रही है, इसको बोलते हैं अर्गेंट या एयरगेंट या जो भी है. तो अगर आपने इसको अगर टच कर दिया तो ये आपको स्टिंग करेगा स्ट्रेट अवे. इट्स अ वेरी मीन सी एनिमल. सो अगर आप स्विमिंग करने का प्लान कर रहे हो तो सीधा या तो फिर डाइव करो पानी के बीच में. जो नॉर्मली सी शोर पे ही रहते हैं ये लोग, करीबन 1 मीटर के रेंज में. ज़्यादा डीप में जाते नहीं है ये भी. तो अगर आपको जंप करना है और आपको डाइव करना आता है तो स्ट्रेट अवे जंप कर सकते हो. बाकी तो फिर आपकी स्विमिंग के स्किल्स के ऊपर करता है. अगर आप डाइवर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये अगर आप देखोगे सब जगह पे है, तो इनसे ज़रा बच के रहना अगर आप क्रोएशिया में स्विमिंग करने का प्लान कर रहे हो. और यहाँ पे सैंडी बीचेस तो होते नहीं है, सारे रॉकी बीचेस है. बट रॉक्स जो है थोड़ा आगे ही शोर पे ही है. आप थोड़ा सा आगे चले जाओगे तो स्विमिंग करने वालों के लिए तो पैराडाइस है ये. हे गाइस, तो आप लोग देख रहे हो हम जा रहे हैं एकदम टॉप पे. वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ इन लोज़ांज. ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको. सो दिस इज़ एन अमेजिंग स्पॉट. मैं आया हूँ एकदम टॉप पे. आई नो थोड़ा सा डेंजरस भी है क्योंकि हाइट नहीं है, मतलब लो से आदमी भी हिल सकता है. बट नींद करके बैठा हूँ मैं, कैमरा गिर नहीं जाए. यस, इससे बेटर तो नहीं हो सकता यार कुछ भी. यहाँ पे आना पूरा ऊपर करीबन 40 मिनट्स लगा ऊपर पहुँचने के लिए. और सर क्या है, पूरा काफ़ी स्लो पे था, इंक्लाइन पे. तो पूरा आना वर्थ हुआ गाइस. और अल्टीमेट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे शायद पहले कोई फोर्ट था और अभी वो पूरा कम्प्लीटली हालत ख़राब है. थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं बट रास्ता भी ऐसे बनाया हुआ है कि कोई आगे नहीं है. तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यार. बस और धूप इतनी मस्त है, जैकेट पहनने के लिए मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं. हे गाइस, सो ये है मेरा लोकल बीच. यहाँ पे मेरा, जहाँ पे मेरी होस्ट है जिसने योगा रिट्रीट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है. और ये समुंदर, ये मेरे फ्रेंड्स हैं. अभी ये है पानी जहाँ पर मैं पहले जा चुका हूँ. अमेजिंग वाटर. थोड़ा सा ठंडा है बट धूप है तो जाने का मज़ा अलग है. यहाँ पे मैं शूज़ क्यों पहन रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ये अर्गिन है जिसको ब्लैक कलर का बोलते हैं, थोड़ा सा स्कैरी आइटम है. अगर इसने आपको स्टिंग कर दिया तो भाई फिर तो पेन किलर लेके ही निकालना पड़ेगा टाइम पूरा. तो अभी जा रहा हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ क्या होता है आगे. हे गाइस, तो मैं आ गया हूँ पानी में और आई कांट टेल यू यार कितना मज़ा आ रहा है. ये समुंदर के बीच में स्विमिंग करना एक अलग ही मैजिकल एक्सपीरियंस है. मतलब, और अगर आपको स्विमिंग प्रॉपरली भी नहीं आती है तो थोड़ा बहुत तो स्विमिंग कर ही सकते हो यहाँ पे. क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ये लाइफ में बार बार नहीं मिलता. एकदम सी थ्रू वाटर है और इसके अंदर घुसना तो लाइक ना, मतलब अजीब ही मज़ा है. एकदम गजब चीज़ है बस. सो
पुर्तो रिका में ये भी एक और पॉइंट है, सारे रॉक्स है और ये मस्त सनसेट देखो, ये नज़ारा एकदम अद्भुत है एकदम पूरा। और क्या मज़ा आ रहा है, इतना मस्त वेदर है। यहाँ पे चर्च है, सारे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो अगर आप रजांग में आए हो। सो गाइस, ये था मेरा लास्ट डे ओवर हियर यहाँ पे रजांग में। अब निकल चला हूँ मैं, अब जा रहा हूँ स्प्लिट फॉर सम टाइम। आई थिंक एक दिन के लिए स्प्लिट जाने वाला हूँ और फिर वहाँ से सीधा अपना फ्लाइट है। तो मिलता हूँ आपको स्प्लिट में। Would you come running if I called you and give me a helping hand? Would you come catch me if I fell down towards a bitter end?